Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter social justice, and in this regard we have seen that how to pursue the ideal of social justice. अगर हमें social justice को हम पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, what we are supposed to do, how to pursue this social justice. So in order to maintain a just society, or in order to bring social justice, what is required that there should not be such gap between the rich and the poor ki it seems ki these people who belong to a particular group are living in the completely different world. एक ग्रुप हमारा है वो they are able to avail all the luxuries of life, all the comforts of life, and on the other hand there is another group which is not able to fulfill the basic needs of the life, and this gap should be less. ऐसा होना चाहिए कि ये जो गैप है इनके बीच का ये कम से कम होना चाहिए. And one more thing which is very important for the purpose of social justice कि जो हमारे poor section of the society है they should not be in a condition of hopelessness. There must be hope in their heart, in their mind, that if they will make effort, they will be given opportunity to improve their condition. जब होपलेसनेस आ जाती है कि हमारे जो आज जो कंडीशन है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट कुछ भी कर लें हम इम्प्रूव नहीं होने जा रहा है, तो दैट सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस का मतलब यही होता है कि हम ये जान सकें कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमने अपना एफर्ट लगाया है, तो ये जो सिस्टम है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी वी आर फ्री टू वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. जिस सिचुएशन में हम आज हैं उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इन ऑर्डर टू bring this social justice, what is required? We should go for open competition, or the government should interfere in order to fulfill the basic needs of the people. And not only this, the government go beyond this fulfilling the basic needs of the people, and that is a redistribution of the resources of the country. So these are the important we can say debates regarding the pursuing of the social justice. हम कैसे social justice को लाएं. तो जो दो मेन रास्ते हमारे सामने हैं social justice को लाने के लिए, that is free market versus state intervention. Okay, so free market versus state intervention. So what we see that free market is based on the concept of equality. कि everyone is free to compete. Everyone the market is open for all. No one can be stopped from any economic activity, and everyone has right to own property. Everyone has right to go in any contract or agreement. So this free market is totally the economy is free. There is no control of the government on the economic activities of the people, and it is based on this concept कि जब हम अपनी इकोनॉमी को फ्री रखेंगे, जब हम अपने मार्केट को फ्री रखेंगे, तो इट विल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी. क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा. देयर विल बी ओनली वन क्राइटेरिया, एंड दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ
merit. It will be based on competition. फ्री मार्केट इज बेस्ड ऑन कंपटीशन, और जब कंपटीशन होगी तो उसमें कौन आगे जाएगा? जिसके पास मेरिट है वो आगे जाएगा. तो हम कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को, कलर को, किसी भी चीज़ को फोकस में नहीं रखता है मार्केट. मार्केट ओनली कंसिडर मेरिट, और मेरिट के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट. But here one thing is very important, and what is that the market is focusing only on the merit of the people. ठीक है, ये तो सही अच्छी बात है कि the market is not giving any kind of consideration to caste, class, gender, religion, color, anything like that, है ना. सिर्फ मेरिट पे आप ध्यान दे रहे हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरिट जो हमारी है, मेरिट तो हमारे अंदर था, टैलेंट था, बट दैट टैलेंट कुड नॉट बी इवॉल्व. उस टैलेंट को बाहर नहीं निकल पाया वो, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस. हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कुछ ऐसी जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ थी वो नहीं मिली. तो जिन लोगों को, द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विच आर नॉट गेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो उनको हम बाकी लोगों के साथ कंपटीशन में उतार दें. हम कहें कि कंपटीशन सबके लिए फ्री है, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो. इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन. बहुत अच्छी बात है, बट जो पुअर हैं वो उस कंपटीशन में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? जो अपने बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, ही विल बी, हिज माइंड इज फुल ऑफ कंसर्न अबाउट फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ. तो वो अपने मेरिट और टैलेंट को कहाँ से निकाल पाएगा? कहाँ से वो अपने मेरिट और टैलेंट को आगे बढ़ा पाएगा? और कहाँ से वो उस क्लास के बराबरी में आ पाएगा जो क्लास की, जिस क्लास की ऑल द नीड्स आर इजीली फुलफिल्ड? तो ऐसे कंडीशन में व्हाट इज रिक्वायर्ड? स्टेट इंटरवेंशन. वी कैन नेवर सपोर्ट कंप्लीटली फ्री मार्केट. इस तरह की कंडीशन में हमको स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन का मतलब यही है कि जो बेसिक नीड्स हैं, फूड से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये जो बेसिक नीड्स हैं वो जो है, दोज बेसिक नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड. एंड ये अगर वो फुलफिल्ड नहीं हो रही है तो फिर फ्री मार्केट और कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है. तो इसके लिए स्टेट का इंटरवेंशन जो हो जाता है ज़रूरी हो जाता है. सो द हाउ दिस स्टेट इंटरवेंशन शुड बी देयर. The basic services should be provided by the private agencies. The private groups or private individuals or private agencies, they must be given opportunity to provide these basic services to the people. But there should be regulation of the government. There should be supervision of the government. The role of the government is to make such laws, to provide such framework कि कंपटीशन जो है वो फ्री हो. ठीक है. एंड जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल इन द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. But here what we find, what problem arises when private agencies enter in the sphere of basic needs. Private agencies, they are always profit oriented. उनके काम करने का जो sole purpose होता है, that is profit. They are not there for social welfare. They are there only for the purpose of gaining प्रॉफिट. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि जो प्राइवेट हमारे ग्रुप्स होते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, दे वांट टू गिव दिस बेसिक सर्विसेज ओनली टू दोज पीपल who have the such financial status कि वो उसको परचेज कर सके, है ना. ये जो भी प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से हमें सर्विसेज मिलती हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है. और जब प्राइवेट एजेंसी हमें ज़्यादा कॉस्ट पे चीज़ें देती हैं तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है.
तो ये क्या हो रहा है कि जब हमने प्राइवेट एजेंसी को हमने अलाउ किया कि यस दे कैन प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं दे वर्क फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, और इस कंडीशन में उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और इस तरह का जो कॉस्ट होता है दैट कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो रिच ग्रुप है या मिडिल क्लास के ग्रुप है, बस वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो हमारे पुअर पीपल हैं दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट सर्विस फ्रॉम द पब्लिक एजेंसीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जो रिमोट विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट स्कूल्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल वो अपना सेटअप करते हैं तो दैट विल गो इन लॉस, क्योंकि उनके जो सर्विस वो जिस रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस को लेने वाला कोई वहाँ पर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। जो भी रिमोट एरियाज़ होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ नीड ऑफ इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। बट यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो हम देख रहे हैं क्या कि जो प्राइवेट एजेंसी की तरफ से हमें जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी सर्विसेज हमें दी जा रही हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, एंड दैट क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो दैट कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जो देखते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है रिगार्डिंग हेल्थ केयर, रिगार्डिंग एजुकेशन, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। द क्वालिटी इज़ नॉट गुड इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्राइवेट एजेंसीज। तो ऐसे, और प्राइस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ये सारी, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनके लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में एक तरफ तो जो रिच है वो प्राइवेट फैसिलिटीज़, प्राइवेट सर्विसेज ले रहे हैं, और जो पुअर हैं they are compelled to take this government services, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये जो वो गवर्नमेंट सर्विस से ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और जो रिच है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। तो ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच का, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है दोनों की सर्विस में। तो जो जिस गैप को भरने के लिए हमने काम किया, वो गैप एक्चुअली कम नहीं हो रहा है, ये गैप को और वाइडन कर रहा है। इस कारण से इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि एक तरह से अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है, करती है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो अपना अच्छे जगह में वो अपना ओपन करें, सेटअप करें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपना प्रॉफिट गेन करें, और जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें गवर्नमेंट कर रही है। तो एक तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं इस जो प्राइवेट एजेंसीज़ को, उनकी प्रॉफिट को आप फैसिलिटी दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस, they are creating a new kind of problem, new kind of situation. So another argument often heard in defense of free market and private enterprises is that the quality of services they provide is often superior to that provided in government institutions. Okay, we have seen that whatever quality of education, quality of healthcare is provided by the private groups or institute, that is superior than the services which is provided by the government. But the cost of such services may put them out of the reach of the poor. Cost बहुत ज़्यादा है, तो poor उसको avail ही नहीं कर सकते उन services को. Private business trends to go where business would be most profitable, है ना? Because they are profit oriented, तो वो वहीं जाएंगे जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितने हम बिग सिटीज़ में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में जाते हैं, वी सी द ग्रेटर नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, द ग्रेटर नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, और जितना हम रिमोट एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में जाते हैं, हमें एक भी नहीं दिखता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग।
Private business tend to go where business would be most profitable, and hence free markets eventually tend to work in the interest of the strong, the wealthy and the powerful. तो अगर हम देखें इस तरह का जो सिचुएशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे रिच सेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और जो हमारा पुअर है वो उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो रही है. तो दिस इज़ वाइडनिंग द गैप between the rich and the poor. This is widening the gap of quality का, सब कुछ का जो गैप है वो हमारा बढ़ता जा रहा है. The result may be to deny rather than extend opportunity for those who are all relatively weak and disadvantaged. तो अगर हम प्राइवेट एजेंसीज को हमने ये दे दिया, यस, कि वहाँ पे हो सकता है, private agencies can provide education facilities, they can provide health facilities to the people. तो इससे गैप जो है वो कम नहीं हुआ है, इसने गैप को बढ़ाया है. अगर सपोज करो, जस्ट सपोज सिचुएशन कि पूरे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते, प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते, प्राइवेट एजेंसीज आर नॉट अलाउड टू गिव दीज सर्विसेज. अगर ऐसा कोई रूल होता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में ये होता कि एवरीवन विल हैव टू गो टू द गवर्नमेंट स्कूल इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन, एवरीवन विल हैव टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन ऑर्डर टू गेट मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सर्विसेज. तो ऐसे में क्या होता, अगर सपोज गवर्नमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और बहुत रिच पीपल हैं, दे आर गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे आर गोइंग टू गवर्नमेंट एजुकेशन, तो क्या वो कितने दिनों तक उस तरह की कंडीशन को वो टॉलरेट करेंगे? नहीं करेंगे. और तब वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करेंगे. देयर कैन बी मास मूवमेंट, बहुत कुछ हो सकता था जिससे कि गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. तो दैट सिचुएशन विल बी फार बेटर देन द प्रेजेंट कंडीशन. आज की कंडीशन में तो आपने गैप को बढ़ाया, आपने गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया, अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल हो गया, तो ये गैप को ये तो बढ़ा रहा है. तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस? कोई यूटिलिटी नहीं है. जरूरी ये है कि जो गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. हम कहते हैं कि यूएस जो है, जैसे अगर यूएस जो है दैट इज़ द चैम्पियन ऑफ फ्री मार्केट, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो चैम्पियन है, फ्री मार्केट का वो चैम्पियन है. ठीक है, आज अगर हम यूएस के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है एजुकेशन सिस्टम में, वो इंडिया में जो रोल प्ले करती है गवर्नमेंट उससे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है. वहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स हैं बट गवर्नमेंट स्कूल्स की जो क्वालिटी है वो कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है. एंड मोस्टली पीपल प्रेफर टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स. जो बहुत हाई क्लास के, रिच क्लास के, वही प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं. हमारे यहाँ तो व्हाट इज़ द कंडीशन कि अगर हमको अपने अदर नीड्स को कम करना होगा, हम खाने में कमी कर देंगे, पहनने में कमी कर देंगे, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी बच्चों की. तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए. फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन का जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा जो पुअर क्लास है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए. बट जो सिस्टम इवॉल्व कर जाता है, खास करके अगर अपनी कंट्री को हम देख रहे हैं, तो इसमें ये जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है उस इनइक्वालिटी को, वो बढ़ा रहा है उस इनइक्वालिटी को, जिसको ख़त्म करना हमारा पर्पस था. तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आवर सिस्टम. Arguments can be put forward on both sides of the debate, but free market often exhibit a tendency to work in the favor of the already privileged. जो already privileged हैं उनके ही फेवर में वो काम करता है. ये होता है फ्री मार्केट जो है वो रिच के सपोर्ट में काम करता है. फ्री मार्केट की जो कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसके कारण रिच जो होते हैं वो रिचर बनते हैं, पुअर जो होते हैं वो पुअरर बनते हैं. दिस इज़ द सिस्टम इन द बिगनिंग. ठीक है, शुरुआत में ये ऐसा ही होता है. तो इट विल बी देयर. दिस इज़ वाई मेनी आर्ग्यू दैट टू एंश्योर
social justice, the state should step in to see that basic facilities are made available to the members of a society. So फ्री मार्केट को हम नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि फ्री मार्केट के अंदर रिच जो है वो बहुत ज़्यादा फायदे में आ रहा है, लेकिन जो हमारे पुअर सेक्शन है उनके लिए ये बहुत ही ख़राब कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो हमें स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि स्टेट इंटरवीन करके सबको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल करा सके एट रीजनेबल कॉस्ट, एंड द क्वालिटी शुड ऑल्सो बी गुड। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, in a democratic society, disagreements about issues of distribution and justice are inevitable. If the democracy is there, then there will be issues of distribution and justice, and this disagreement, whatever कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो disagreement हम देख रहे हैं, that is not only inevitable but also healthy. क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट होगा तभी तो हम कुछ नया रास्ता देखेंगे, कुछ नया निकालेंगे, है ना। तो एंड इवन हेल्दी बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड रैशनली डिफाइंड आवर ओन व्यूज़। जब डिसएग्रीमेंट होगा तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट व्यूज़। और जब हम वो देखेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हम अपने एक तरीके को अपनाएं, हाउ टू डिफेंड आवर ओन व्यूज। पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशंस ऑफ सच डिसएग्रीमेंट थ्रू डिबेट, है ना। तो डिसएग्रीमेंट विल बी देयर, एंड डिसएग्रीमेंट होना कभी भी अनहेल्दी नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज हेल्दी। डिसएग्रीमेंट है इसका मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। अगर डिसएग्रीमेंट है तो इसका मतलब वी हैव द राइट टू डिसएग्री। अगर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें वो अधिकार ही नहीं मिला है कि हम डिसएग्री कर सके। वी आर जस्ट अग्रीइंग, जो कुछ भी हो रहा है हम सिर झुका के उसको मान रहे हैं, तो दैट इज हाईली अनहेल्दी। वो अनहेल्दी सिचुएशन है, एंड नो वन कैन सपोर्ट दैट सिचुएशन। इन डेमोक्रेसी डिसएग्रीमेंट, इन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, in democracy this kind of opposition is considered to be very healthy, क्योंकि हमारे अंदर ये कंसर्न होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें डिसएग्री करने का अधिकार होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अनडेमोक्रेटिक है। ओके, एंड दिस इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यही होता है कि कैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है उनमें कैसे निगोशिएशन करें थ्रू डिबेट। कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाता है। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है कि हम वायलेंस के रास्ते को अपनाएं, लेकिन इसका यही मतलब होता है कि डिबेट्स के थ्रू हम कैसे निगोशिएशन करें डिफरेंट एग्रीमेंट्स, डिफरेंट व्यूज़ के बीच में। इन आवर ओन कंट्री मेनी काइंड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक inequalities exist and much remain to be done if they are to be reduced. We experience so many social disparity, economic disparity, and so many things are needed to be done by the government. Studying the different principles of justice should help us to discuss the issues involved and come to an agreement regarding the best way of pursuing justice. है ना? तो this is the utility of these chapters. This discussion will create a kind of awareness among the people like you and me. So this is very important, and now we will discuss some situations. Okay, it is given on page number 57 in this box. Some situations are given. Okay, and in this situation we have to decide that the situation जो भी प्रिवेल कर रहा है उसमें जो भी डिसीजन लिया गया, that decision is according to the principle of justice or not according to the principle of justice. Okay, so the first situation is Suresh, a visually impaired student, gets 3 hours and 30 minutes to finish his mathematics paper while the rest of the class gets only 3 hours. So what is the situation? The situation is that there is a visually impaired student, Suresh,
and there is examination of mathematics, and that visually impaired student has been given 3.5 hours. 3 hours plus 30 minutes, and the other student was others who are fit visually, they are given 3 hours. So this extra time of half an hour is given to Suresh. So is it justified or not? So what we see that Suresh is visually impaired and he is doing the paper of mathematics in which he need his eyes, है ना, अपने आँखों से ही वो सारा काम करेगा, एंड ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, तो इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड कि ही मस्ट बी गिवन सम एक्स्ट्रा टाइम ताकि वो अपने काम को सही से कर सके. तो इसलिए पहला जो सिचुएशन सुरेश का है उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ अ जस्टिफाइड सिचुएशन. अगर उसको आधे घंटे ज़्यादा दिया गया है तो उसमें कोई अनजस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसकी स्पेशल नीड है और उसके इस स्पेशल नीड को कंसिडर करते हुए उसको कुछ स्पेशल टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम दिया गया है. Okay, now the second situation is Geeta walks with a limp. The teacher decided to give her also 3 hours and 30 minutes to finish her mathematics paper. Now there is one more student, her name is Geeta, and she has problem in her leg. Okay, तो उसके legs में problem है, and now the teacher has decided that Geeta must also be given 3 hours and 30 minutes time in order to complete her mathematics paper. So this is a justified situation or an unjustified situation. This will be an unjustified situation because Geeta has the problem in her leg only, and she will have to do the mathematics paper with her hands and eyes and mind only. So there is no role of the legs in the paper of mathematics. If the paper of if there is examination of some physical education or dance or anything like that in which legs are required, then that can be considered. But in this examination of mathematics, she should not be given this extra time. Okay. And now the third situation: a teacher gives grace marks to the weaker student in class to boost their morale. So sometimes we see that grace marks are given to students. So this can also be said to be a justified situation because students' morale need to be boosted. Many times it happens कि अगर उनको हर समय खराब मार्क्स आएंगे तो फिर वो डिस्करेज हो जाएंगे, उनको पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा. So in order to make them encouraged towards the studies, they must be given such grace mark, but they should not be developed as a habit. अगर हम इसको एक habit बना लेंगे तो फिर they will never do hard work. So it must be given to in a very special situations, and it should be used very rarely. It should not be used on a regular basis. Okay. Then a professor distributes different question paper to different students based on her evaluation of their capabilities. So what we see that a professor is there and the professor is distributing different question paper to different students because it is her opinion that the students' capability is different. So this is also a justified situation because what we find that capabilities are different. We cannot equate all the students in the same manner. तो अगर उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है तो उनका जो पेपर है वो भी उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हम कर सकते हैं. ये दैट विल बी हाईली लिबरल सोसाइटी. जैसे कि आज हमारी CBSE ने जो मैथ्स के लिए किया है कि 2 types of maths question papers are there, basic mathematics and standard mathematics. So if the students is less capable in mathematics, then he or she can go for standard mathematics, basic mathematics. अगर वो capable है तो standard mathematics लेगा. The book is same, the teacher is same, everything is same, है ना. But the question paper is different. क्यों? क्योंकि
कई बार होता है कि कुछ बच्चों की कैपेबिलिटीज़ जो होती है वो अदर फील्ड में ज़्यादा है, तो आप उसमें काम करिए। इसके लिए आप बस एक मिनिमम आपको आना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज देयर इज अ proposal to reserve 33% of the seats in the parliament for women. So this also depends on the situation. If the representation of women is very less, then there will be need to reserve seats for them. If the representation is proper, then there is no need to reserve seats. We see that their percentage in the population is 50% around, and in the case of India we see that their representation in the parliament is less than 10%. तो इस सिचुएशन में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बिकॉज तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। बिकॉज जो भी लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट से ही बनते हैं। अगर पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगी तो वैसे लॉज को पास होना बड़ा मुश्किल होगा, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो इस कारण से देयर मस्ट बी, बट अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो हमको रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए। Okay, so this is all for today, and we will start a new chapter tomorrow.